Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to explain you a new poem that is No Men Are Foreign. This poem has been composed by James Kirkup. Now, I hope you will be listening to me very carefully and will be collecting the valuable points, something that I am going to explain. So, I want you all to pay attention here. Here I start. Have you ever thought of some people as strange और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोगों के बारे में कि वो स्ट्रेंज है, अजनबी है, या फिर कंट्रीज़ के बारे में कि वो फॉरेन है, विदेश हैं, अब्रोड है? वी हैव मैनी वेज टू थिंक ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एज दैम. Poet says there are many ways by which the people are completely different comparatively us. They may belong to a different country or speak a different language. Here, poet says that they can be speaking different language, they can belong to other country, and what I personally feel, how the people are different comparatively us, like the way they celebrate their festivals, it may be different. Their dressing sense, it may be different. The languages the people speak, it may be different. Their rituals, traditions, customs, these may be different. So this is how the people may be different. Now let's continue. In this poem, इस poem के अंदर, however, द पोइट रिमाइंड्स अस, हालांकि वो हमें याद दिलाते हैं, ऑफ मैनी वेज, कई तरीके, कई रास्ते, इन विच वी आर ऑल द सेम. वो बताते हैं कि कितने तरीके, देर आर मैनी वेज बाय विच वी पीपल आर द सेम. फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब क्या है, हम सभी ह्यूमन हैं, ह्यूमन बींग्स हैं हम. सो हियर आई स्टार्ट. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज फॉरेन. पोइट कहता है कि हमेशा याद रखो कि कोई भी व्यक्ति, इवन अ सिंगल पर्सन, इज इज नॉट स्ट्रेंज, वो स्ट्रेंज नहीं है. कोई भी देश, इवन अ सिंगल कंट्री, इज नॉट फॉरेन, वो फॉरेन नहीं है. इज नॉट अब्रोड, वो अब्रोड नहीं है. बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, कि हम जितने भी यूनिफॉर्म्स पहनते हैं उनके नीचे अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक सिंगल बॉडी सांस लेती है. दैट मीन्स एवरीबडी हैज गॉट like two hands, two legs, two eyes, two ears, one mouth, one head. So here poet wants to talk about these things. यहाँ पर जो poet है वो इस चीज़ों के बारे में बताना चाहता है. Now let's continue. Like ours, कि जिस तरीके से as we people have got two eyes, two ears, one mouth, two legs, so similarly all the foreigners, all the people, those who are living in America, Australia, England, Canada, like people, those who are living there, they are also having these things. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. Now, here poet talks about the land.
जिस तरीके से हम लोग धरती पर चलते हैं, इवन आर ब्रदर्स, हमारे भाई चलते हैं। सो वो चाहे धरती अमेरिका की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, कनाडा की हो, इंग्लैंड की हो, मीन्स दे आर टू पीपल वॉक अपॉन द लैंड, दे यूज अर्थ for moving, for walking upon it. I hope you understand, my dear students. Let us move ahead. They too aware of sun and air and water. As the sun rises in our country, जैसे कि हमारी कंट्री में सूरज उगता है, राइट, इवन एयर ब्लोज, हवा चलती है, एंड वाटर फ्लोज। तो जिस तरीके से मीन्स वी पीपल हैव सन, एयर, वाटर, सो दे पीपल ऑल्सो हैव गॉट सच थिंग्स, दीज थिंग्स। तो उन लोगों के पास भी ये चीज़ें हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स, by wars long winter starved. Now I tell you what does poet say here. He says like जिस तरीके से means we people eat bread, boiled and fried vegetables. So the people also eat. वो लोग भी क्या खाते हैं, वो लोग भी वेजिटेबल खाते हैं, लाइक ग्रेन खाते हैं, and a war's long winter starved. What does this mean? It means like जिस तरीके से हम लोग परेशानी से गुजरते हैं, like I just have got a very like example, means during lockdown we people faced a lot, we struggled a lot, right? We had to face a lot of problem. तो जिस तरीके से हम लोगों को ये परेशानी सहनी पड़ी, मीन्स वी हैड टू face a lot of problems. So the people also faced a lot of problem. They also had to be at their homes. They couldn't move outside of their homes, right? So अगर problem है, if the problems are over there, if the people get injured, they feel pain, right? They also have got to suffer uh, like diseases. तो जिस तरीके से हम लोग परेशानी में होते हैं, सो दे पीपल ऑल्सो फेस प्रॉब्लम्स। देयर हैंड्स आर आर्स, जैसे उनके हाथ है, हमारे हाथ भी ऐसे ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आर ओन। तो पोइट कहता है जिस तरीके से मीन्स उनके जो हाथ है, मीन्स द पीपल लाइक एज द पीपल हैव गुड हैंड्स, इट इज़ एक्चुअली सेम एज वी पीपल हैव गुड हैंड्स, जैसे हमारे हाथ हैं। इवन इवन द लाइन्स, इवन द लाइन्स दैट वी हैव गोट ऑन आर पाम्स, जिस तरीके से हमारे हथेली में रेखाएं हैं, एंड डेस्टिनी इज रिटेन देयर, फॉर्च्यून इज रिटेन देयर। तो जिस तरीके से हमारी किस्मत में अगर मेहनत करना लिखा है, सो द पीपल ऑल्सो हैव गुड द सेम थिंग, like as the people have got palm, so obviously lines must be over there, and like the people also have got to perform hard work, the people also have got to work hard, उन्हें भी मेहनत करनी है। I hope my dear students you understand. Let's continue. Remember they have eyes, याद रखो उनकी भी आंखें हैं हमारी तरह, that wake, जो जागती हैं, और sleep, और सोती हैं, and strength that can be won by love. In every land is common life, right? That all can recognize and understand. पोइट सेज हियर कि उनकी भी आंखें बिल्कुल हमारी तरह हैं, जो जागती हैं, सोती है, और उनके अंदर भी एक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ पर माइंड से है, कि हम उनके माइंड को जिस तरीके से हम लोग मीन्स लाइक बाय बाय पोलाइटनेस, बाय काइंडनेस एंड बाय मोडेस्टी,
लाइक वी पीपल आर इम्प्रेस्ड एंड वी पीपल आर वोन बाय समबडी, तो उन लोगों को भी विद द हेल्प ऑफ काइंडनेस, मोडेस्टी, विद द हेल्प ऑफ जेनरोसिटी, दे कैन बी वोन, उन्हें भी जा सकता है, अपना बनाया जा सकता है। इन एवरी लैंड, हर लैंड पर जो जिंदगी है वो एक जैसी है, कॉमन है। हर कोई एक दूसरे को पहचान सकता है और एक दूसरे को समझ सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कंटिन्यू। लेट अस रिमेंबर, चलो याद करते हैं। वेन एवर वी आर टोल्ड, जब भी हमसे कहा जाता है टू हेट आर ब्रदर्स, कि अपने भाई से नफरत करो, आपस में झगड़ा करो, इट इज़ आर सेल्स, हम ही वो लोग हैं, हम ही वो लोग हैं, दैट वी शैल डिस्पोजेज। माई डियर स्टूडेंट्स, हियर कम्स ए न्यू वर्ड, दैट इज डिस्पोजेज। डिस्पोजेज का मतलब होता है डेप्राइव, किसी चीज़ से मतलब वंचित, किसी चीज़ से वंचित रहना, वंचित कर देना, दूर रहना, या फिर लाइक इनकार कर देना, मना कर देना। तो देखो बेटा यही है, इट इज़ आर सेल्स दैट वी शैल डिस्पोजेज। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन अस, कि हम झगड़ा करें या ना करें। हम इनकार भी तो कर सकते हैं, वी पीपल कैन डिनाई, वी पीपल कैन लाइक रिफ्यूज। तो हम बिट्रे, वी शैल डिस्पोज, भाई हम डिस्पोज कर सकते हैं, बिट्रे कर सकते हैं। बिट्रे का मतलब एक तरीके से होता है कि लाइक किसी को चीट करना, राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो डिस्पोज, बिट्रे, कंटेम्प्ट मतलब एक तरीके से किसी की इंसल्ट करना, बेइज्जती करना, राइट, किसी को उकसाना, धोखे में रखना। रिमेंबर ही, रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट इज, याद रखो हमेशा हम ही होते हैं जो एक दूसरे के खिलाफ क्या करते हैं, हम हथियार उठाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस मूव अहेड। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है मेक डर्टी। हम ही इंसान है जो अपनी धरती को, अपनी भूमि को गंदा करते हैं। आर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, हमारे अंदर जो गुस्सा है और जो नेगेटिविटी है, आउटरीच द इनोसेंस, वो कहीं ना कहीं हमारी इनोसेंस को ख़त्म कर देता है, हमारी मासूमियत को बिल्कुल, लाइक दैट डेस्ट्रॉयज, राइट, ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ऑन। और ये मासूमियत हर किसी के अंदर होती है, इट लाइज एवरीवेयर, इट लाइज इन एवरीबडी। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड कंट्रीज स्ट्रेंज, याद रखो हमेशा कोई भी देश विदेश नहीं है और कोई भी मैन फॉरेनर नहीं है। So my dear students, here poem ends. I hope you must have understood. Thank you very much.